Hello, good morning, students of ninth class. Today we are starting a new chapter number 2, The Adventures of Toto, from your book Moments. Open your book on page number 7. This is a story of a monkey whose name is Toto. He is bought from a Tonga driver for 5 rupees by grandfather. Now I start. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. The Tonga driver used to keep the red little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. Grandfather happens to meet a Tonga driver, and he had a monkey. Grandfather liked that monkey and he wanted to have it. He purchased that monkey from the Tonga driver for rupees 5. That before that, Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. Feeding trough means uh, a container which is used for animals to eat. नांद जिसे हम कह सकते हैं, उससे वो बांध के उसको रखता था. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. That place, monkey was not adjusting to live, so grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. He had already his mini zoo where he kept many animals like rabbits, tortoises, etc. Toto was a pretty monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrows. उसकी टोटो एक बहुत प्रिटी मीन्स ब्यूटीफुल मंकी था. इट वॉज अ ब्यूटीफुल मंकी. हिज आइज वर वेरी स्पार्कलिंग, शाइनिंग, एंड बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, यानी कि उसके जो आंखें थी उसके पर जो आईब्रोज थी बहुत गहरी थी. एंड हिज टीथ which were pearly white, teeth were very white like a pearl, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. हाँ, और उस मंकी से, वो जो मंकी था विच वर अ प्रिटी वाइट, एंड उसके दांतों से क्या होता था, वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल. अक्सर वो उन दांतों से स्माइल करता हुआ या हंसता हुआ जैसा प्रतीत होता था. दैट फ्राइटेंड, और उन दांतों से जो एंग्लो इंडियन लेडीज़ थी, ओल्ड बूढ़ी और एंग्लो इंडियन औरतें, उनकी तो जान निकल जाती थी डर के मारे. बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड in the sun for many years. His hands were like dry pickle in the sun rays, yet his fingers were quick and wicked. Yet his fingers were quick in action and wicked. Wicked means क्या कहते हैं, शरारती टाइप की उसकी फिंगर्स. हर कुछ उसके हाथ में जो आता वही उसको अपनी फिंगर्स से पकड़ लेता था.
and his tail, while adding to his good looks, his tail was also adding in the charm of beauty. Add- उ- उसके सुंदरता में चार चांद लगा देती थी. Grandfather believed a tail would add to anyone's good looks. According to grandfather's views, he believed a tail adds beauty to looks of any animal. So tail is also an aspect of beauty. Also served as a third hand, and not only a tail of an animal, especially a tail of a monkey, is not only an aspect of beauty, but also it serve as a third hand. ये तीसरा हाथ भी होता है. देखते हो, with the help of tail, it hang himself on a branch of a tree, and he could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands. वो किसी भी delicacy means खाने पीने की स्वादिष्ट चीज़ें जिस किसी को भी वो जो उसके हाथ से दूर होती थी, वो उसको जो है बाहर के लिए निकालने में जो है उसके अंदर एबिलिटी थी. Grandmother always first when grandfather brought home some new bird or animal. Whenever grandfather was fond of birds and animals, but grandmother, her nature was total vice versa, और behind it बिल्कुल इसके उल्टा था. Whenever grandfather brought any animal or bird, grandmother always made a big issue. वो बखेड़ा खड़ा कर देती थी. So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought to a peg fastened into a wall. और इसलिए जब वो ग्रैंड मदर बड़ी क्या कहते हैं कि एनॉय हो जाती थी या बखेड़ा खड़ा कर देती थी, वो गुस्सा हो जाती थी, इसलिए ग्रैंडफादर और मैंने, हु इज़ आई हियर, आई इज़ द नरेटर, ग्रैंडफादर और मैंने डिसाइड किया कि उसको एक सीक्रेट प्लेस पर रखा जाए जो उनके बेडरूम की तरफ खुलता है, और जब ग्रैंड मदर का मूड अच्छा होगा तब उसको बाहर निकालेंगे उनके सामने. इन दिस वे उसको सिक्योरली रखने की उन्होंने उसका डिसीजन लिया. A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, and now stood out as naked brick and plaster. और जब वो उसको कुछ समय बाद बाहर निकालने के लिए गए तो क्या देखता हूँ कि उसने जो दीवारों पर जो ऑर्नामेंटल यानी कि रंग बिरंगे आभूषणों जैसे डिज़ाइन के पेपर्स जो लगे हुए थे वो सब हटा दिए, है ना, फाड़ फूड़ दिए, और वो दीवार और वो शेल्फ बिल्कुल ब्रिक और उसका प्लास्टर दिखने लग गया था. इस तरह से उसने ये शरारत, मिस्चीफ उसने की. द पैग इन द वॉल had been wrenched means pulled out.
peg in the wall had been wrenched out from its socket, और जो नेल जो पैग या नेल नेल माने कील लगी हुई थी वो उसने उसको बाहर निकाल दिया खींच के. एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन shreds. Shreds means torn into threads. और उस जहाँ मेरा ब्लेज़र भी वहाँ पर टंगा हुआ था, स्कूल ब्लेज़र, उसको भी उसने लेके चिथड़े चिथड़े कर दिया. आई वंडर्ड वॉट ग्रैंड मदर वुड से. मुझे आश्चर्य हुआ और सोचने लगा कि ग्रैंड मदर क्या कहेंगी. यानी मुझे डर लग रहा था कि ग्रैंड मदर क्या कहेंगी. बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी. ही सीम्ड प्लीज्ड विथ टोटोज परफॉर्मेंस. टोटो मतलब ग्रैंड फादर तो खुश लग रहे थे विदाउट एनी टेंशन. उसने इतना नुकसान कर दिया, बट ही वॉज प्लीज्ड विद हिज एक्टिविटीज़. परफॉर्मेंस मीन्स वट्स एवर टोटो डिड, इट वॉज हिज परफॉर्मेंस. ही इज़ क्लेवर, said grandfather. Given time, I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope. वो बहुत चालाक है. ग्रैंडफादर ने कहा कि अभी तो समय है क्या, लेकिन मुझे श्योर है कि अगर थोड़ा और समय निकल जाता तो वो क्या करता कि आप तुम्हारे ब्लेज़र को के जो टुकड़े टुकड़े हो रखे हैं ना, उनको जोड़ जोड़ के एक रस्सी बना लेता और एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो. और he would escape from the window with the help of that rope. समझ में आया ना. His presence in the house is still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters where a number of grandfather's pets lived very sociably together. Toys, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. तो वो ये बताते हैं कि उसकी प्रेजेंस जो है पूरे घर में सीक्रेट रखने के लिए उसको सर्वेंट्स के क्वार्टर्स के पास में जो एक बड़ा सारा केज, एक पिंजरा बना हुआ था, वहाँ पे उसको जो उन्होंने भिजवा दिया. और जहाँ दादाजी के कई पालतू पशु पक्षी, एक कछुआ, खरगोशों का एक जोड़ा, एक पालतू गिलहरी और कुछ समय के लिए मेरी पालतू बकरी साथ साथ मिलजुल कर वे लोग रहते थे. But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night. तो लेकिन जो मंकी था, मंकी was very mischievous and naughty animal. He would not allow any of his companions to sleep at night. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. तो उसकी इस खतरनाक शरारतों को देख के ग्रैंडफादर को भी चिंता हुई. उन्होंने इसको वापस अपने साथ ले जाने का डिसाइड किया. कहाँ, जहाँ वो देहरादून से सहारनपुर जा रहे थे अपनी पेंशन लेने के लिए. अनफॉर्चुनेटली इसमें एक बात आती है कि ग्रैंडफादर वॉज अ रिटायर्ड पर्सन, दैट्स वाई ही इज़ गेटिंग pension and he has to go to Saharanpur from Dehradun to collect his pension. Unfortunately, I could not accompany grandfather on the trip, but he told me about it afterwards. ये पैराग्राफ जो पूरा यही है, इस बात को बताता है कि मैं जो है किसी कारणवश में जा नहीं सका, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे उस वहाँ वो गए, क्या क्या हुआ, टोटो को साथ ले गए, कैसे ले गए, और ये सारी घटना उन्होंने मुझे बताई. A big black canvas kit bag was provided for Toto, और
क्या हुआ कि एक ब्लैक कैनवास किट बैग, कैनवास एक लेदर टाइप का होता है, उसका बना हुआ बैग होता है बहुत मजबूत, उसके अंदर टोटो को रखा गया। और उसमें क्या नीचे कुछ घास वगैरह बिछा दी उसके पैंदे में, और वो उसको बड़ा जो है कि स्मूथ बनाया, कहते हैं ना स्पंजी बना दिया स्ट्रॉ रख करके, और वो उसका एक नया रहने का स्थान बन गया। When the bag was closed, that was no escape. टोटो could not तो जब बैग को बंद कर दिया तो उसका अब कहीं से भी निकलने की कोई जगह नहीं थी, और वो अपना हाथ तक भी बाहर नहीं निकाल पाता था। और उसने जो है कि his efforts to get out only had the effect of making the bag roll about and only, ये लाइन पढ़ोगे आपको मालूम चलेगा कि his efforts to come out was only when Toto was inside the bag. It was closed from all sides. It was like a ball and it was rolling about the floor. और वो बॉल की जैसी वो बैग हो गया उसका, और वो ज़मीन पे यूँ लुढ़कता था जैसे वो अंदर से निकलने की कोशिश करता तो वो बैग समेत ही लुढ़क जाता था, और कभी कभी वो हवा में भी उछलने लगता था। तो ये इस तरह से लोगों के लिए ये क्या हो गया कि एक तरह की एग्जीबिशन टाइप का हो गया। लोगों को आश्चर्य हो रहा था इसके अंदर क्या है, ये क्या है जो ये, इसलिए ये बैग इसकी वजह से चल रहा है। और वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई अदर पैसेंजर्स की, क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स, यानी कि देखने वालों की भीड़, क्यूरियस भीड़, उत्साहित लोगों की। टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर तक टोटो बैग में रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, लेकिन जब ग्रैंडफादर अपना टिकट उस टिकट कलेक्टर को बता रहे थे तो किस जगह पे, रेलवे के उस टर्न स्टाइल गेट वो होता है कि 4 पार्ट्स होते हैं उसके, हॉरिजेंटल बार्स लगे होते हैं उसमें, और इट रोल्स अराउंड द पोल, और उसको घुमाओ तो एक ही जना उसके अंदर से पास हो सकता है। इसका मीनिंग देख लेना, नेक्स्ट पेज पर आया है। वहाँ पर वो टिकट बता रहे थे, और जितने में क्या देखते हैं कि टोटो ने अपना सिर बैग से बाहर निकाला हुआ है, और टिकट कलेक्टर को एकदम दांत दिखाने के बाद वो ग्रिन, यानी कि दांत दिखाने लगा। ग्रीन मीन्स दांत दिखाकर चौंका देना। तो वो जो टिकट कलेक्टर था बेचारा पहले तो टेकन अबैक मीन्स चौंक गया, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन उस समय उसने अपने आप को संभाला, और ग्रैंडफादर के ऊपर बहुत गुस्सा हुआ वो, और उसने कहा कि आपके साथ एक डॉग भी है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। इन वेन डिड grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog, और यानी कि ग्रैंडफादर उस बेकार में उनको एक्सप्लेन करते रहते हैं टिकट कलेक्टर को कि ये कोई जो है कुत्ता नहीं है ना, ये नहीं, ये एक बंदर है, और एक कुत्ते के बराबर बंदर मंकी नहीं हो सकता, ये मंकी डॉग नहीं है इसका मतलब। एंड और इवन एज अ क्वाड्रप्ट मीन्स 4-legged एनिमल्स। और उसने कहा कि ये दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग और इवन एज अ क्वाड्रप्ट, यानी कि 4-legged एनिमल नहीं है ये, 4 पैरों का जानवर जैसे कि डॉग होता है। टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, और टोटो
को डॉग की तरह ही तुलना उसकी की गई थी टिकट कलेक्टर के द्वारा। दैट एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, है ना। और इस वजह से ग्रैंडफादर ने उसको इसके 3 रुपीज़ एज अ फेयर यानी कि किराए के रूप में उसको दे दिए। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट tortoise and said, "What must I pay for it since you charge for all animals?" तो उन्होंने टोटो मंकी का 3 रुपीज़ चुकाने के बाद उन्होंने अपनी बात ऊंची रखने के लिए, यानी कि जस्ट टू गेट हिज ओन बैक मीन्स अपनी बात ऊंची रखना, या कहते हैं ना अपनी टांग ऊंची रखना, उसको अपनी इज्जत बचाने के लिए पूछा कि भाई हाँ भाई इसके कितने पैसे देने हैं, क्योंकि आप सब जानवरों के चार्ज करते हो, इसलिए आप इसका भी बता दो। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द tortoise, prodded it with his forefinger and gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it is not a dog." टिकट कलेक्टर ने उसको बहुत पास से टॉर्टोइस को देखा। टॉर्टोइस एक छोटा सा जो उन्होंने पॉकेट से बाहर निकाला था, इतना सा होगा, उसको दबा के देखा और अपनी फिंगर्स के से उसने उसको यूँ सहला के और उसको प्रेस करके देखा। और ग्रैंडफादर को बड़े ही मुस्कुरा कर उनकी तरफ भी देखा उसने, और जैसे कि एक ट्रायम्फेंट लुक यानी कि एक जीत से भरी हुई नज़र, जैसे कि ग्रैंडफादर जीत गए। एंड सैड, और कहा कि कोई चार्ज नहीं क्योंकि ये डॉग नहीं है। इस तरह से ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम फर्दर पेज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस।